Hello everyone, I welcome you all back to my YouTube channel. Well, I hope you all are doing very much fine at your homes. So जैसे कि आप सबने आज का thumbnail देखा ही होगा. So for those of you don't know, today's video is going to be something very much interesting, and today's video is going to be something very much authentic and about the native dishes of Odisha. That is the very much famous dalma. So this dish is one of the most important dishes of the Chappan Bhog that is offered to Lord Jagannath at the Jagannath temple in Puri. That is the one of the most worshipped place all over the world. So वहाँ पे जो dalma preparation होता है that is very much different. That is prepared in a very authentic manner in which the dalma is prepared in a very simple way but it tastes heavenly. So the most important thing and the most important difference is that which is prepared in the temple is it is basically prepared on a clay pot. So basically आज मैंने क्या किया है कि आज मैं एक क्ले पॉट लाया हूँ जिसमें आई विल बी प्रिपेयरिंग द डालमा. हमारे घरों में जब डालमा प्रिपरेशन होता है तब दैट इज़ डन इन द प्रेशर कुकर or it is done on the normal utensils, but the one which is offered to the god in Jagannath temple or in other temples, that dalma is prepared in a clay pot. So here you can see this is the clay pot that I have bought. So इस clay pot में आज हम dalma preparation करने वाले हैं. To be honest, this is my first try today of preparation of this dalma in an authentic style. I do not know how it is going to turn out, but let's hope for the best. And इसके साथ जो हम लोग खाते हैं और जो ऑफ़र होता है भगवान को, that is one very nice sweet recipe which is called the dahi pachedi. So we are also going to prepare that with this. So please watch this video till the end. And those who are from Odisha, please give a shout out by giving your comments in the comment section below. And please let me know in the comment section below how do you find this video. I do not know honestly how this video is going to be and taste कैसे होने वाला है या फिर डालमा अच्छे से प्रिपरेशन होगा या नहीं. But before that I want to say this is one of the favorite dishes of every people of Odisha, every person of Odisha. So with due regards I want to prepare this dish. So let's see how this dish is going to be. So watch this video till the end and stay blessed. So friends, while I was editing, मुझे कुछ चीज़ याद आया, so I'm just putting this clip in between. तो this is basically for the non-Odia audience and those who are not from Odisha. तो आज का जो डिश है authentic dalma and the dahi pachedi. So this is basically an authentic dish of Odisha. But whenever you are visiting Odisha, you are getting to know of it from someone or somewhere, आपको इसका रेसिपी कम्प्लीटली वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. एंड ऑल्सो व्हेन यू सर्फ इन द इंटरनेट और यूट्यूब, आपको जो सब वीडियोस मिलेंगे उसमें से ऑलमोस्ट आई थिंक 80 to 85% वीडियोस आर इन द रीजनल लैंग्वेज दैट इज़ ओडिया. बट आई ट्राइड इन सम वे टू मेक दिस वीडियो कंप्लीट वीडियो फॉर यू पीपल सो दैट आप सबको भी ये पता चले कि किस तरह से हम इसे बना सकते हैं एंड इसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स हम यूज़ करने वाले हैं. सो दिस इज़ द वीडियो इन विच बीइंग एन ओडिया मैंने कुछ वैसे ओडिया यूज़ किया नहीं है, बट श्योरली यू कैन गेट एन ओवरऑल आइडिया फ्रॉम दिस वीडियो कि हमें क्या क्या सब कैसे कैसे करना है टू प्रिपेयर दिस डिश और दिस प्रसाद इन आवर होम्स. सो दैट वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू से इन बिटवीन. डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. थैंक यू गाइज. तो सबसे पहले मैंने अरहर के दाल को पानी में भिगोया है 1 से 1.5 घंटे तक. 1.5 घंटे के बाद मैं प्रोसेस ऑफ कुकिंग शुरू कर रहा हूँ. तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आज हम यूज़ करने वाले हैं डालमा के प्रिपरेशन के लिए. दीज आर ऑल द वेजिटेबल्स. बट जो मंदिर में ऑथेंटिक डालमा प्रसाद लगता है उसमें आलू का यूज़ कभी नहीं होता. यहाँ पे मैंने जो दाल को भिगोया था उसे स्ट्रेन किया है. जिंजर और चिल्ली को अच्छे से क्रश किया है. देसी घी, गुड़, हींग, हल्दी, नमक और लास्ट को छौंक देने के लिए जीरा. मैंने जो मटका लाया था सबसे पहले उसे मैंने गैस पर रखा है थोड़ा हीटअप होने के लिए. तो आफ्टर 4 to 5 मिनट्स मैंने उसमें 400 ml पानी डाला है और पानी को हमें बॉयल होने के लिए 3 से 4 मिनट देना है. 3 से 4 मिनट के बाद हमने जो दाल को स्ट्रेन किया था उसे पानी में डालना है. इस डालमा का खासियत ये है कि ये डालमा को हम कभी भी मिलाते नहीं हैं. एक के बाद एक हम इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे लेकिन इसे कभी भी मिलाएंगे नहीं.
आफ्टर 4 to 5 मिनट्स जब इसमें झाग आना शुरू हो जाए तो हमें 1 टेबलस्पून हल्दी डालना है। जगन्नाथ मंदिर में जो प्रसाद के लिए डालमा लगता है वो कभी भी मिलाया नहीं जाता। सबसे लास्ट को जब छौंक दिया जाता है उसके बाद ही उसे मिलाते हैं। तो इसे बार बार हमें कवर करना है और बॉईल होने के लिए छोड़ना है। थोड़ी देर बाद 5 से 7 मिनट के बाद यहाँ पे आई एम एडिंग ऑल द वेजिटेबल्स दैट आई हैव कट इनटू डाइसेस। तो ये वेजिटेबल्स को भी हमें एक के बाद एक डालना है, लेकिन इसे बिल्कुल भी नहीं मिलाना। तो ये झाग आना जब शुरू हुआ इसका मतलब है कि प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सो यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स को डाले। उसके बाद स्वाद अनुसार हमें नमक डालना है। मैंने यहाँ पे अबाउट 1.5 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट डाला था। उसके बाद मैंने फिर से सॉल्ट ऐड किया था एज़ पर माई टेस्ट। तो आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। फिर हमें इसे अच्छे से कवर करना है और मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए रखना है। थोड़ी देर बाद जो जिंजर और चिली को हमने क्रश किया था उसे भी डाल देना है और फिर से हमें इसे कवर कर लेना है मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए रखना है। इसका कलर अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएगा और ये जो सारे वेजिटेबल्स अभी ऊपर है बॉईल होने के बाद ही अपने आप नीचे चले जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा क्रश चिली और ऐड किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे वेजिटेबल्स अभी ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं। तो यहाँ पर मैं अभी अराउंड 1 टेबलस्पून गुड़ ऐड किया हूँ। जब सब कुछ अच्छे से बॉईल होना शुरू हो जाए तब हीट को मीडियम हाई रख के मैं अराउंड 1 टेबलस्पून हींग ऐड किया हूँ। तो इसे फिर से कवर करना है और 2 मिनट के बाद हमें ग्रेटेड कोकोनट को भी ऐड करना है। ये प्रोसेस लंबा ज़रूर है लेकिन इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा आता है। तो अराउंड 10 मिनट के बाद हमें छौंक देना है जिसमें हमें देसी घी, जीरा और ड्राई रेड चिलीज़ को यूज़ करना है। तो हियर आई हैव टेकन 1 बिग स्पून ऑफ देसी घी जिसे हमें अच्छे से मेल्ट करना है और उसके बाद हमें उसमें ड्राई रेड चिलीज़ और जीरा को डालना है। तो इस प्रोसेस में हमें छौंक देना है और डालमा को इमीडिएटली कवर कर लेना है सो दैट द फ्लेवर्स गेट एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द डालमा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जीरा और ड्राई रेड चिलीज़ को देसी घी में ऐड किया हूँ और इसे 1-2 मिनट थोड़ा सा स्टर करने के बाद हमें इसे डायरेक्टली डालमा के ऊपर डाल देना है। तो ये अच्छे से कुक हो चुका है। तो अभी हमें इसे डालमा के ऊपर डाल के डालमा को अच्छे से कवर कर लेना है फॉर अबाउट 5 to 6 मिनट्स। So here I have covered it and in the next step after 5 to 6 minutes हमें नाड़ी ऐड करना है। तो जिन लोगों को नहीं पता ये बेसिकली एक तरह का वड़ी होता है जो मंदिर के प्रसाद में लगता है। सो आफ्टर 10 मिनट्स हमें डालमा को अच्छे से नीचे से मिलाना है and then our badiya dalma is completely ready. So here you can see our badiya dalma is looking so very good. You can see the thickness, you can see the texture and it is looking so tempting. So here our dalma is prepared. Moving on to the second dish, that is the dahi pachadi. इसके लिए I have taken curd और कर्ड में थोड़ा सा पानी मिला के उसे अच्छे से मिलाना है और एक अच्छा मिक्सचर बनाना है। जब ये एक स्मूथ मिक्सचर फॉर्म हो जाए उसके बाद हमें इसमें 1 टेबलस्पून के आसपास नमक डालना है और अराउंड 3 to 4 टेबलस्पून के आसपास शक्कर डालना है। तो इसे भी हमें अच्छे से दही के साथ मिलाना है और इस प्रोसेस में हमें ककड़ी को अच्छे से कद्दूकश करना है और 2 तरह के जिंजर का यूज़ करना है। पहला है मैंगो जिंजर एंड द सेकंड वन इज़ द नॉर्मल जिंजर। सो यहाँ पे मैंने कद्दूकश किया हुआ क्यूकम्बर को ऐड किया है। उसके बाद आई एम एडिंग द ग्रेटेड मैंगो जिंजर एंड देन द ग्रेटेड नॉर्मल जिंजर। तो इसे मिलाने के बाद हमें अच्छे से इसे कर्ड के साथ मिलाना है और इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद हमें सरसों और देसी घी का एक छौंक भी इसके ऊपर डाल के इसे अच्छे से मिलाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने थोड़ा ग्रीन चिलीज़ को भी ऐड किया है एंड फिर मैंने सरसों और देसी घी का छौंक डाल के भी इसे अच्छे से मिलाया है। दिस इज़ बेसिकली फॉर द एनरिचमेंट ऑफ द फ्लेवर्स। उसके बाद हमें कट किया हुआ ग्रेप्स, अनार के दाने और एप्पल को डालना है। पर मंदिर में इसके साथ ग्रेटेड कोकोनट को भी मिलाया जाता है, बट मुझे पर्सनली ग्रेटेड कोकोनट इतना ज़्यादा पसंद है नहीं, सो मैंने उस स्टेप को यहाँ पे स्किप किया है। सो हियर आई एम एडिंग ऑल द फ्रूट्स, दैट इज़ द पोमोग्रेनेट सीड्स, एप्पल एंड ग्रेप्स, और इसे डालने के बाद हमें अच्छे से मिलाना है एंड देन आवर पचड़ी इज़ कम्प्लीटली रेडी एंड ट्रस्ट मी दिस टेस्ट्स हेवनली।
So here both of our dishes is prepared, and here our complete plate is ready on the banana leaf. We call it Oriya, Badya Dalma and Dahi Pachadi. So do enjoy it with your family. Friends, this was all about today's video and मैंने खाना बनाने के बाद I have tasted it and जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि I'm doing it for my first time and I was a bit confused कि अच्छा होगा या नहीं होगा, या फिर अगर clay pot फट गया या फिर कुछ मतलब टेस्ट अच्छे से आया नहीं. बट ट्रस्ट मी, I have tasted it after making it and बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है. आई कैन मतलब महाप्रसाद जो होता है या फिर जो मंदिर में लगाते हैं प्रसाद लगाते हैं, उससे तो टच कोई भी नहीं कर सकता, कुछ भी टेस्ट नहीं कर सकता. लेकिन ये जो आज मैंने बनाया वो ऑलमोस्ट दैट वाज 70 to 80% लाइक दैट. सो जैसे कि हम कुछ भी अगर क्ले पॉट में बनाते हैं देन द टेस्ट ऑफ द डिश गेट्स एनरिच्ड. सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड टुडे, क्योंकि ना इसमें हम तेल यूज़ नहीं किए हैं. We have not used any sort of powdered spices, just haldi and salt, that's it. So इतना basic dish को भी हम इतना अच्छा बना सकते हैं by such a simple process. So please do try this at your home. And here you can see there are some of the pictures of the dish, the dalma and the pachadi. So this was all about today's video, and do share this video as much as possible. And those who are from Odisha, do let me know in the comment section below how do you find this video. So that's all. Do like, share and subscribe my YouTube channel and stay safe at your homes. And जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया and those who have not put the bell notification on, then please click on the bell notification to get notified whenever I upload any of my videos. So this was all about today's authentic video, or the video about authentic style dalma and pachadi. So thank you guys and stay safe.